सर जब वाला साहब थे ना तो वाला साहब से ये पैसे लेकर जाते थे ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸਕੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ, ਮਸੰਮੀਆਂ, ਕਿੰਨੂ, ਕੇਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਲੇ, ਫਰੂਟ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਪੁੱਸੇ ਆ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਰੂਟ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਣ ਅਸੀਂ ਭਾਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ गरीब आदमी। हमने इनको क्या मारना है, हमारा वो हम बदमाश लोग हैं, तो सरकारी मुलाजम है। ये उधर सारे रेडियो वाले पीछे होते थे, ये सबसे आगे होते थे और सड़क पे कब्जा किया हुआ था, रेडियाँ लगाई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ गुजरांवाला से, मैं हूं उमर फरूक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर शहर भर में ऑपरेशन किया जा रहा है। तो वहीं जो गरीब रेहड़ीबान हैं उनसे जो कॉरपोरेशन एहलकार हैं वो मुबैना तौर पर पहले जो है वो पैसे वसूल करते थे। पैसे ना देने का इल्ज़ाम जो है वो इनकी जानिब से लगाया जा रहा है कि पैसे ना देने और तजावुज़ात ख़त्म करवाने की आड़ में गरीब रेहड़ीबानों पर ना सिर्फ तशद्दुद किया गया है बल्कि एक ही वाक़े के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं, उनको जो है वो हरासा भी किया जा रहा है। इन रेहड़ीबानों का जो है वो गोदाम, पैरा फोर्सेस और जो कॉरपोरेशन एहलकार है उनकी जानिब से तोड़ा जाता है और गरीब रेहड़ीबानों में जो है फ्रूट भी जो है वो फ्री तकसीम कर दिया जाता है और इनके पैसे भी जो है वो चुरा कर ले जाए जाते हैं और इनके जो है वो मज़ीद इन पर मुकदमा दर्ज करवाने का कहा जा रहा है। कॉरपोरेशन एहलकारों के साथ इनका क्या मामला हुआ था, रेहड़ीबान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, किस तरह से ये मामला शुरू हुआ था? पैसे मांगते थे, क्या मामला करते थे? सर जब वाला साहब थे ना तो वाला साहब से ये पैसे लेकर जाते थे। तो जब वाला साहब होते हैं तो हमारे मसाइल जो इतने थे कि कोई घर नहीं निज़ाम चल रहा। निज़ाम चलाना से क्या चलो 5-6 दिन बाद ना सौदा ला लें, सौदा लाया पहले दिन तो इन्हों ने एक बंदा भेजा कि जो पैसे लै गए उसके यार साढ़े को पैसे नहीं है, साढ़े वाल साहब फोत होए ने ते वो चल गया। उस तो बाद इन्हों का अफसर आया अहमद अंसारी साहब, वो आए ने, आके इन्होंने साडा माल चुक के सुट्टना शुरू करतियाँ, सेब ਦੀਆਂ पेटियां, मसम्मियां, किन्नू, केले, सारा कुछ सुट्टना शुरू करता ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਣਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਲੀ ਨਾ ਕੱਢੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ 5-6 ਦਿਨ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਜ ਫਲਾਣੇ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਭਾਈ ਸਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਖੁਰਮ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਸਨ। ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨਾਨੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਨਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਵਾਈਏ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮਾਲਟਨ ਥਾਣੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਲਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਥਾਣੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰਜਾਗ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਗਰਜਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਾਨੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀਆਂ गलोचियाँ करते हैं हमारे साथ। अच्छा जी बताइएगा, जब आप तशद्दुद हो गया, लड़ाई होगी, झगड़े के बाद जब वो आए गोदाम पे किस तरह से हल्ला बोला, क्या मामला हो गोदाम? भाईजान हम जो है ना हमारे पे इन्होंने पर्चा करवा दिया था उस दिन जो वो वकूआ हुआ है ना उधर शरीफपुरा चौंक में, इन्होंने ना साढ़े तो पर्चा कराता। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਈ ਗਏ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਰਹਿਮਤ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਯੂਨਸ ਬੱਟ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੇਂਗਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਲੇ ਫਰੂਟ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਪੁਸੇ ਆਏ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਫਰੂਟ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਣ ਅਸੀਂ ਭਾਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ 3-4 ਦਫਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा जी, किधर किधर आप दरख्वास्त देने गए थे जो है वो अब नहीं कोई भी सुन रहा, वज़ीर आला पंजाब या आला हुकाम से क्या मुतालबा करते हैं आप? जिधर भी जाते हैं भाई हमारी दरख्वास्त नहीं ले रहे और हमें बदनाम करी जा रहे हैं। ठीक है, जिधर भी जाते हैं ना वो कह रहे हैं आपके ऊपर पर्चा हो गया, गरजार थाने भी दे रही है। ठीक है, माल्टन थाने एक पर्चे का ना 3 जगह पे पर्चा दे रही है, एक वाक़े का 3 जगह पे दे रही है। ये क्या, हम इतने बदमाश हैं, हम इतने गुने किराए पे मकान है, 2 महीने का किराया है, पूछे मालिक मकान से 2 महीने का किराया हुआ है। ठीक है, तो बहुत हमें परेशानी है, बहुत तंग हुए हैं। ये रहमत अंसारी साहब के बेटे के ऊपर तो हो सकता है ना, जो वो गवर्नमेंट है वो हमें तशद्दुद कर गए, और इन्होंने जो ताले तोड़े हैं, ठीक है, ताले तोड़ने का इनके पास हुकूक है और पीरा फौज वाले के पास है। ठीक है, ये दोनों पार्टियां रल के हम इतने बदमाश हैं, हम गरीब आदमी हैं। ठीक है, 7 दिन हुए हैं, अबू फौत हुए, हम मसला लेकर जाएंगे, छुरियाँ लेकर जाएंगे, इन्होंने हम पे ये कर दिया। यार भाई, ये मरियम नवाज़ से वज़ीर आला से हमारी गुजारिश है कि हमें गवर्नमेंट की सिर्फ दौलत से हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम उनके वोट हैं। ठीक है, लोनली के हम वोट हैं, हम पक्के वोट हैं, हमारा इधर 40-50 घर हैं, हम उनके ही हैं। ठीक है, लेकिन ये लड़के आना, प्राइवेट आना, प्राइवेट का ना मसला है भाई, गवर्नमेंट ही आ सकती है, हमें जो जुर्म किया है उसका हमें भरवाई करवाएं, जो वो चाहें वो करें, लेकिन ये मसला नहीं है हमें आकर लड़के बाहर से आकर हमें बदनाम करें, बिस्त करें, गाली गलोच करें। वालिद साहब बहुत हुए हैं, कैंसर के मरीज थे, जो कुछ दाम लगा दिया और इन्होंने बहुत ज्यादती की है हमारे साथ। हाँ जी बिल्कुल, आपने इन गरीब रेहड़ीबानों की बात सुनी, इन पर ना सिर्फ तशद्दुद किया गया है बल्कि एक वाक़े के 3 मुकदमात भी जो मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवाए गए हैं, और इनको जो है वो दोबारा से हरासा किया जा रहा है, बल्कि जत्थों की सूरत में, मोटरसाइकिलों की सूरत में जो है वो इनके घर भी आया जा रहा है। CCTV फुटेज भी तमाम जो वाक़े की मौजूद है, लेकिन अभी तक जो है वो आला हुकाम की जानिब से ना इनका नोटिस लिया गया है, ना ही जो है वो किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से यही मुतालबा किया है कि इन पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ या कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। वो इस तरह ही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमें मार भी लिया, हमारे दिमागों में चोटें भी लगा ली, हमारा एक ड्राइवर है उसको सर भी फाट गया, दूसरों को मारा, किसी का हाथ फाट गया। उसके बाद वो सोशल मीडिया पे वो कहने लग गए हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती है। सड़क पे कब्जे करके शरीफपुरा चौक आज आप देखें तो वहाँ को रेडी 0 है, वो सारा क्लियर है। तो इन्होंने 4-5 भाई हैं और 2-3 इन्होंने पठान बार के रखे हुए थे, बजौड़ वगैरह के, जो जिनके पास छुरियाँ थी, और इनके पास भी छुरियाँ, पिस्टल और डंडे लेके हमें मारा है। इन्होंने काफ़ी मारा है, लेकिन हॉस्पिटल में रहे हैं, और आपको भी फोटो भी देखी होंगी, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अभी ठीक है। दर्दें तो हैं अभी भी, लेकिन ये नौकरी है, जो कमाता है इधर से कमाई खाते हैं, बच्चों को पालते हैं, तो जो गवर्नमेंट का हुक्म होगा उस पर अमल तो करना पड़ेगा। अच्छा, वो इल्जाम लगाते हैं रहमत अंसारी साहब के बेटे हमारे घरों में आते हैं, बेटा वैसे ही उम्र का कम है, तो दूसरे एक यूके होता है, एक ऑस्ट्रेलिया होता है, फैमिलियों के साथ बाहर हैं। हम इस तरह के लोग नहीं हैं भाई, ये सरकारी काम है। ये इल्ज़ाम तो ये भी लगाते हैं कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, हमारा भी इन्होंने उधर कैमरे लगे हुए हैं, आप उधर फुटेज निकाल सकते हैं, वो सारे कैमरे उधर ही हैं। गवर्नमेंट को उस पर ही अमल करके FIR दी है, सारा चेक करके। हमने इनको क्या मारना है, हमारा वो हम बदमाश लोग हैं, तो सरकारी मुलाजम है। ये उधर सारे रेडियो वाले पीछे होते थे, ये सबसे आगे होते थे, और सड़क पे कब्जा किया हुआ था, रेडियां लगाई हुई थी, तो वो खत्म कराएंगे हमारा इंशाल्लाह। जहाँ कब्जा होगा वो तो हमने छुड़वाना ही है। इनके ऐसे हथकंडों से हमने को डरना तो नहीं है, को तनहा लेते हैं। मेरे बाद को आएगा वो भी करेगा, और आएगा वो भी करेगा, ये तो सरकारी ड्यूटी है, ये करनी पड़ती है।